Hello friends, welcome to our channel School Prep. This is the question answer part of class 8 science chapter 3 synthetic fibers and plastic. In this video we will discuss some questions and their answers related to this chapter. The first question is explain why some fibers are called synthetic. हमें explain करना है कि कुछ fibers को synthetic fibers क्यों कहा जाता है. The answer is some fibers are called synthetic fiber because they are made by man using chemicals. Because some fibers कैसे obtain होते हैं chemicals के through, chemicals को use करके mans के द्वारा बनाए जाते हैं. That's why they are called synthetic fibers. They are not obtained from nature or natural fibers, so they are not called natural fibers. The second one is mark the correct answer. Rayon is different from synthetic fibers because rayon is synthetic fiber, but it is different from synthetic fiber because it is obtained from wood pulp. The correct answer, because it is obtained from wood pulp. ये किससे बनता है? wood pulp से हमें obtain होता है and wood pulp is natural, so it is not completely synthetic fiber. That's why it is different from synthetic fiber. The next question is fill in the blanks with the appropriate words. Synthetic fibers are also called dash and dash fibers. तो synthetic fibers को क्या कहा जाता है? Man made fiber, क्योंकि ये मैन द्वारा बनाए जाते हैं. That's why they are called man made fiber. And second, artificial fiber because they are not natural fibers, so it is called artificial fiber. The synthetic fibers are synthesized from the raw material called petrochemicals. क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनसे उनके बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल मिलता है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है? पेट्रोलियम से ऑब्टेन होता है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स. द नेक्स्ट वन इज लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज ऑल्सो. प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक भी पॉलीमर है. सिंथेटिक फाइबर पॉलीमर होते हैं जो बहुत सारे मोनोमर्स को आपस में लिंक्ड करके ज्वाइन करके बनाया जाता है, तो उसको पॉलीमर कहते हैं. एंड सिंथेटिक प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर. गिव एग्जाम्पल्स विच इंडिकेट दैट नाइलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. तो हमको एग्जाम्पल देना है कि जो नाइलॉन है, नाइलॉन इज सिंथेटिक फाइबर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग. तो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हम उससे पैरासूट्स बनते हैं. एंड जब हम रॉक क्लाइंबिंग की जाती है तो उसके लिए जो रोप्स बनती हैं दे आर ऑल्सो मेड फ्रॉम नाइलॉन. The second one is they are used in making seat belts, fishing nets, tire cords, string for sports rackets and musical instruments. इन सबको बनाने के लिए नाइलॉन सिंथेटिक फाइबर का यूज किया जाता है. That's why we are called nylon fiber is very strong. The next question is explain why plastic containers are favorite for storing food. तो फूड को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक कंटेनर इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों हैं? बिकॉज इसका कुछ रीजंस हैं. बिकॉज प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद द फूड स्टोर्ड इन द दैम. क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो किसी भी टाइप के केमिकल्स से रिएक्ट नहीं करता. तो फूड में अगर कोई केमिकल्स होंगे या फूड में कुछ किसी भी प्रकार का रिएक्शन फूड के साथ नहीं करता है. द प्लास्टिक आर लाइट वेट एंड ऑल्सो स्ट्रॉन्ग. तो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा वेट में बहुत ज़्यादा लाइट होता है, इसीलिए इजीली कैरी हो सकता है. एंड आर स्ट्रॉन्ग, और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है. That's why plastic containers are used for storing food. And the third one is they are easy to handle and safe. ये बहुत easy होता है इनको हैंडल करना और सेफ, क्योंकि अगर गिर भी जाए हमारे हाथ से तो ये एकदम टूटते नहीं है. अगर इसी की जगह पे आपके ग्लास के कांच के अगर कंटेनर होंगे तो अगर वो हाथ से बाय मिस्टेकली छूट जाएं तो क्या हो सकते हैं? वो इजीली ब्रेक हो सकते हैं. तो plastics are very easy to handle and these are safe. Explain the difference between thermoplastic and thermosetting plastic. तो two types of plastic थे, thermoplastic and thermosetting. तो इनमें difference क्या है? These plastics are softened on heating and can be bent easily. ये बहुत soft होते हैं thermoplastic, और heat देने पे ये अपने आप को deformed कर देते हैं, अपने shape change कर लेते हैं, तो easily bent हो सकते हैं.
इन और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को रिमोल्डेड नहीं किया जा सकता. दीज प्लास्टिक्स व्हेन मोल्डेड वंस, एक बार अगर इनको शेप दे दिया जाए तो ये इतने हार्ड होते हैं कि हीट करने पर इनको दोबारा इनका शेप चेंज नहीं किया जा सकता. तो वंस कांट बी सॉफ्टन अगेन. दे डू नॉट लूज देयर प्लास्टिसिटी, ये अपनी प्लास्टिसिटी को लूज होते नहीं है. प्लास्टिसिटी मीन्स जो अपने आप को, उनको अगर हीट किया जाए तो इजीली चेंज हो जाते हैं, अपना शेप चेंज कर सकते हैं, डिफॉर्म्ड हो सकते हैं. तो यही प्लास्टिसिटी है. बट जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो अगर उनको एक बार शेप दे दिया जाए तो उसके बाद वो अपनी प्लास्टिसिटी लूज कर देते हैं. एग्जांपल्स आर पॉलीथीन व्हाई फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल्स हैं पॉलीथीन, पीवीसी, इलेक्ट्रिक प्लग्स, थर्मोसेटिंग के बोर्ड्स. एग्जांपल्स हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मेलेमाइन. तो थर्मोसेटिंग एंड मेलेमाइन कहाँ यूज होते हैं? कुकवेयर बनाने में. बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, जिनको हीट करने पर हैंडल्स होते हैं वो डिफॉर्म्ड नहीं होते, अपना शेप चेंज नहीं करते, बेंट नहीं होते. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो देखिए जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं वो बेड कंडक्टर होते हैं. तो जब हम कुक करते हैं, कुकिंग होती है, वाइल कुकिंग, तो दे डू नॉट हीट अप, वो हीट नहीं होते, गर्म नहीं होते एकदम. एंड दे आर यूज फॉर मेकिंग सॉसपैन हैंडल्स. तो इसीलिए उनको जो यूटेंसिल्स होते हैं, हमारे कुकर्स होते हैं, सॉसपैन होते हैं, उनके हैंडल्स बनाए जाते हैं ताकि आप उनको इजीली पकड़ सको और वो आपके हाथ को बर्न ना करे, क्योंकि वो बेड कंडक्टर होते हैं हीट के. एंड सिंस थर्मोप्लास्टिक इज ऑल्सो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के भी बेड कंडक्टर होते हैं. मीन्स इनमें इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो नहीं होता. सो द इलेक्ट्रिसिटी करंट डज नॉट पास थ्रू द सच प्लास्टिक्स. दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेस एंड प्लग बोर्ड्स. अगर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा, तो हमें करंट नहीं लगेगा, अदरवाइज हमें करंट लग सकता है. The next question is categorize the materials of following products into can be recycled and cannot be recycled. कुछ आपको प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, हमको इन प्रोडक्ट्स को किस में क्लासीफाई करना है कि ऐसे जो जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं. तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, हम देख लेते हैं. कैन बी रिसाइकिल हम किन्हें कर सकते हैं? प्लास्टिक टॉयज कैरी बैग्स, प्लास्टिक टॉयज, जो ऐसे टॉयज जो प्लास्टिक से बने होते हैं, नॉट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से. जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं और थर्मोप्लास्टिक से टॉयज बनते हैं. कैरी बैग्स भी उसी के बने होते हैं. प्लास्टिक बॉल्स, ठीक है, प्लास्टिक बाउल्स होते हैं, वो भी थर्मोप्लास्टिक से बने होते हैं. प्लास्टिक कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर के बाहर से जो प्लास्टिक कवरिंग होती है, दीज आर ऑल्सो मेड फ्रॉम थर्मोप्लास्टिक. प्लास्टिक चेयर्स, तो हम इनको रिसाइकिल कर सकते हैं. कैन नॉट बी रिसाइकिल, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, मीन्स जो हार्ड होते हैं, हीट करने पे जिनको हम डिफॉर्म्ड शेप दोबारा से चेंज नहीं किया जा सकता, लाइक टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, कुकर हैंडल्स, बॉल पॉइंट पेन्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इनको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राना वांट्स टू बाई शर्ट्स फॉर समर, शुड ही बाई कॉटन शर्ट्स और शर्ट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर. तो हमें क्या एडवाइस करना है उसे कि वो कॉटन शर्ट्स ले या सिंथेटिक मटेरियल से बनी हुई शर्ट ले. तो इसका आंसर है ही शुड बाई कॉटन शर्ट्स. उसे कौन सी शर्ट लेनी चाहिए? कॉटन शर्ट लेनी चाहिए, बिकॉज कॉटन हैज मोर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर. तो कॉटन में कैपेसिटी होती है मॉइस्चर को होल्ड करने की, जबकि सिंथेटिक फाइबर में इतनी कैपेसिटी नहीं होती. इन समर हमें क्या होती है? एक्सटेंसिव स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में क्या होती है? स्वेटिंग होती है, जिसे जो कॉटन होता है क्योंकि उसमें मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, सो कॉटन इजीली शो कर सकता है स्वेटिंग को. दैट्स वाई कॉटन क्लोथ्स आर मच बेटर देन क्लोथ्स मेड फ्रॉम द सिंथेटिक मटेरियल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एग्जांपल्स टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर. प्लास्टिक नॉन कोरोसिव होते हैं. नॉन कोरोसिव मतलब ऐसे मटेरियल जो एयर के साथ रिएक्शन करके रस्ट नहीं होते. ओके, दैट आर कॉल्ड नॉन कोरोसिव मटेरियल और नॉन कोरोसिव इन नेचर. द लिटरल मीनिंग ऑफ नॉन कोरोसिव इज रेसिस्टेंट टू गेट डिस्ट्रॉयड बाय द केमिकल एक्शन. तो एयर ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन के बाद जैसे आयरन में रस्ट लग जाता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लाइक उसी को कोरोसिव नेचर कहते हैं.
और नॉन कोरोसिव जो केमिकल रिएक्शन से डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक इज नॉन कोरोसिव इन नेचर। प्लास्टिक कंटेनर्स डू नॉट रिएक्ट विद द आइटम स्टोर्ड इन। तो प्लास्टिक कंटेनर्स के आप अंदर कोई भी आइटम स्टोर कर सकते हैं, उनके साथ किसी भी टाइप की वो रिएक्शन नहीं कर सकता। दे डू नॉट गेट रस्टेड व्हेन एक्सपोज इन मॉइस्चर एंड एयर। जब उसको मॉइस्चर या एयर में एक्सपोज किया जाए तो डू नॉट गेट रस्टेड। और अगर उसको लंबे टाइम तक आप ओपन एरिया में रख दें तो वो डिकम्पोज नहीं होता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शुड द हैंडल्स एंड ब्रिस्टल्स ऑफ टूथपेस्ट टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल? एक्सप्लेन योर आंसर। तो क्या जो हैंडल्स हैं आपके कुकवेयर के एंड टूथब्रश का जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो सेम मटेरियल से बनते हैं या बनने चाहिए? तो अगर हाँ तो उसका भी आंसर एक्सप्लेन करना है, अगर नो देन एक्सप्लेन योर आंसर। सो द आंसर इज नो। The handle of bristle of a toothbrush should not be made of the same material. Means जो कुकवेयर के हैंडल्स होते हैं और टूथब्रश के ब्रिस्टल्स होते हैं उनको सेम मटेरियल्स नहीं बना सकते, बिकॉज हमारे गम्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो ब्रिस्टल्स का को भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। दैट्स वाई ब्रिस्टल्स ऑफ टूथब्रश आर मेड फ्रॉम थर्मोप्लास्टिक। वो किसके बने होते हैं? थर्मोप्लास्टिक के बने होते हैं। एंड जो हैंडल्स होते हैं वो हार्ड मटेरियल के बने होते हैं। दैट्स वाई दे आर मेड फ्रॉम thermosetting plastic. Okay, the next question is, avoid plastics as far as possible. Comment on this advice कि प्लास्टिक को हमें जितना पॉसिबल हो सके हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। इस पे हमको कमेंट करना है इस एडवाइस पर। तो प्लास्टिक मस्ट बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। द मटेरियल्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स आर नॉन डिग्रेडेबल। हमने क्या बोला है कि जो मटेरियल प्लास्टिक होता है वो कैसा होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। मींस वो डिकम्पोज नहीं होता, उसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो प्लास्टिक से क्या होता है? इन्वायरमेंट पे एक बैड इफेक्ट डालता है। तो प्लास्टिक को जब बर्न किया जाता है तो इसमें से जो फ्यूम्स निकलती है वो पॉइजनस होती है, तो वो पूरे एयर में क्या करती है? पॉल्यूशन। उसके कारण एटमॉस्फेयर में एयर पॉल्यूशन होता है। दीज प्लास्टिक मटेरियल्स व्हेन ईट अप बाय द एनिमल्स, और कोई भी एनिमल्स लाइक काउ उनको अगर ईट कर लेती है बाय एक्सीडेंटली तो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम चोक्ड हो जाता है, और जिसके कारण बिकॉज ऑफ दिस दे कैन डाई ऑल्सो। ओके, द वेस्ट प्लास्टिक आर्टिकल्स थ्रोन हेयर एंड देयर केयरलेसली गेट इनटू डर्टी वाटर। और जो प्लास्टिक्स होते हैं अगर हम उनको स्ट्रीट में रोड्स में इधर उधर फेंकते हैं या ड्रेन्स में फेंकते हैं तो वो कहाँ चले जाते हैं? वो वाटर को बहुत ज़्यादा डर्टी कर देते हैं, और जो ड्रेन्स हैं उनको क्या कर सकता है? ब्लॉक कर सकता है। सो प्लास्टिक कैन बी कंसिडर्ड अ थ्रेट ऑफ टू अवर इन्वायरमेंट। तो हमारी इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो हमें पॉसिबल हो तो हमें प्लास्टिक को मैक्सिममली अवॉइड करना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द टर्म्स ऑफ कॉलम ए करेक्टली विद द फ्रेजेस गिवन इन कॉलम बी। तो हमें इसे मैच करना है। तो फर्स्ट वन इज पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्या है? पॉलिएस्टर इज फैब्रिक डू नॉट रिंकल इजीली। ये ऐसा फैब्रिक है, सिंथेटिक ही है, सिंथेटिक फाइबर है जो इजीली रिंकल नहीं होता। ओके, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन किस में यूज होता है? नॉन स्टिक जो कुकवेयर होते हैं आपके उनको बनाने में टेफ्लॉन यूज होता है, ऐसे कुकवेयर जो नॉन स्टिक्स होते हैं। द रेयन। रेयन क्या है? प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। जो वुड पल्प है उसमें केमिकल रिएक्शन करके ही हमें क्या मिलता है? रेयन मिलता है। ओके, द लास्ट वन इज नाइलॉन। तो नाइलॉन किस में बनाया जाता है? पैरासूट्स बनाने में नाइलॉन का यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड स्टॉकिंग्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट। तो सिंथेटिक फाइबर अगर हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो ये एक्चुअली वो क्या करता है? हमारे फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करता है, फॉरेस्ट को बचाता है। इसमें हमें कमेंट करना है। द आंसर इज, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अगर सिंथेटिक फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग होगी, वी यूज ओनली केमिकल सब्सटेंस। तो सिंथेटिक फाइबर्स मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। ओके, मैन मेड, दे आर आर्टिफिशियल, उनमें केमिकल सब्सटेंसेस का यूज होता है। एंड नो नेचुरल मटेरियल, किसी भी टाइप का नेचुरल मटेरियल इसमें यूज नहीं होता। सो दे कंजर्व फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इज अवर, क्या है? फॉरेस्ट हमारी नेचर है, तो किसी भी टाइप का नेचुरल मटेरियल इसमें यूज नहीं होता। दैट्स वाई
जो सिंथेटिक फाइबर है इनके मैन्युफैक्चर से हमारे फॉरेस्ट क्या हो रहे हैं, कंजर्व हो रहे हैं। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें दिखाना है कि जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो हमें एक सर्किट अरेंज करना होगा, जैसे एक फिगर में बनाया है। तो ये देखिए, ये बैटरी है, सेल लगे होते हैं, जैसे टॉर्च की बैटरी होती है, सेल्स होते हैं, उसको हम इसमें लगा लेते हैं। इससे एक वायर कनेक्ट करते हैं, एक बल्ब लगाते हैं, टॉर्च बल्ब, टॉर्च का बल्ब लगा लेते हैं। उस टॉर्च के बल्ब के वायर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, और दूसरी साइड पे उसी वायर को कनेक्ट हम टॉर्च बल्ब से करते हैं। बट बीच में हम क्या कर देते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक लगा देते हैं, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल लगा देते हैं। उसके बाद हम जब इसको स्विच ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो टॉर्च बल्ब है वो ग्लो नहीं करता है। अगर यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक मटेरियल की जगह पर कोई मेटल का मटेरियल रख दिया जाए तो जो टॉर्च बल्ब है वो ग्लो करेगा, ये जलेगा। ओके, बट अगर हमने यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक लगा दिया तो इस गैप के बीच में, तो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल की वजह से करंट फ्लो नहीं होगी, इस बल्ब तक करंट नहीं जा पाएगी और ये ग्लो नहीं करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो थर्मोप्लास्टिक है इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे एंड दिस चैप्टर इज ऑल्सो क्लियर टू यू। इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss some other chapters. Till then, keep watching. See you next video.